Welcome students, class 9 maths exercise 5.1. Question number 1. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. First statement is only one line can pass through a single point. Okay? Second, there are infinite number of lines which can pass through two distinct points. Third, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. Fourth, if two circles are equal, then their radii are equal. Fifth, in the following figure, if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. यहाँ पे दिए हमें 3 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, तो जो फर्स्ट का है सॉल्यूशन, फर्स्ट इज फॉल्स स्टेटमेंट. सिंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया है कि थ्रू अ सिंगल पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास, जबकि वन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर कैन पास. ठीक है, इट कैन बी सीन इन दिस फिगर. सेकंड, फॉल्स. ठीक है, सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास. स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, through two distinct points on infinitely many lines can pass. It is false statement because only one line can pass through two distinct point. ठीक है, in the following figure we can see it. Third statement is true. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. Let AB be a terminated line. It can be seen that it can be produced indefinitely on both the sides. ठीक है, दोनों साइड में हम AB को एक्सटेंड कर सकते हैं. फोर्थ, ट्रू. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर सेंटर एंड सर्कमफेरेंस विल कोइंसाइड एंड हेंस देयर रेडियाई विल आल्सो बी इक्वल. फिफ्थ स्टेटमेंट ट्रू बिकॉज इट इज गिवन दैट AB एंड XY आर इक्वल. ठीक है, and both are equal to third side line PQ. According to Euclid's first axiom, things which are equal to same thing are equal to one another. जो चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. Therefore the lines AB and XY will be equal to each other. Next question है हमारा question number 2. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? ठीक है, फर्स्ट है पैरेलल लाइंस. इसमें हम इनको टर्म्स को डिफाइन करना है और हमें बताना है कि इसको डिफाइन करने से पहले हमें कौन से टर्म्स को डिफाइन करना जरूरी है. पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर. फर्स्ट है पैरेलल लाइंस. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, then these are called parallel lines. In other words, the lines which never intersect each other are called parallel lines. To define parallel lines, we must know about point, क्योंकि हमने point की बात की है, lines and distance between the lines and point of intersection. ठीक है, ये terms इसके definition में आई है, तो इनको पहले हमें इनको define करना जरूरी है. Second है perpendicular lines. If two lines intersect each other at 90 degree, then these are called perpendicular lines. ठीक है, जो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस. यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, लाइन. वी आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन लाइन एंड एंगल बिफोर डिफाइनिंग द परपेंडिकुलर लाइंस. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. To define a line segment, we must know about point and line. ठीक है, हमें इसको डिफाइन करने से पहले हमें लाइन और पॉइंट दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए. फर्स्ट, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. To define the radius of circle, we must know a point and circle. Next है fifth, square. A square is a quadrilateral having all sides of equal length and all angles of same measure.
that is 90 degree. To define square, we must know about quadrilateral, side and angle. Question number 3. Consider the two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C, which is between A and B. Second, there exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain. Solution. There are undefined terms. Point and line, दो terms इनमें जो undefined है. They are consistent. Consistent का मतलब है कि contradiction नहीं होना चाहिए दोनों में. There are no contradiction between two postulates because they deal with two different situations. First says that given two points A and B, there is a point C lying on the line in between them. ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. यहाँ पे two given points A and B, ठीक है, जो एक लाइन में लाई कर रहे हैं, उनके बीच में कौन सा पॉइंट है? C. तो ये हमारा कोलिनियर पॉइंट्स. देखो एक लाइन में जो लाइन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. तो सेकंड सिचुएशन है. सेकंड सेज दैट A and B you can take C not lying on the line through A and B. ठीक है, यहाँ पे हम A and B से होते हुए एक लाइन ड्रॉ की है जिसमें पॉइंट C लाइन नहीं कर रहा है. तो ये दूसरी सिचुएशन हो गई नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की. तो दोनों ही डिफरेंट सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंसिस्टेंट है. अब यूक्लिड्स पोस्टुलेट किसके बारे में बात करती है? फर्स्ट पोस्टुलेट है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सेकंड पोस्टुलेट है टर्मिनेटेड लाइन से रिलेटेड. थर्ड सर्कल से. फोर्थ राइट एंगल से. एंड फिफ्थ है टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग से रिलेटेड. सिंस गिवन टू पोस्टुलेट्स आर नॉट रिलेटेड टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, these postulates do not follow from Euclid's postulates. Question number 4 है. If a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing the figure. ठीक है, सॉल्यूशन. ये हमें गिवन है, एक लाइन है AC AB, ठीक है, जिसमें पॉइंट C इस तरह से है कि AC is equal to BC है. ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में AC प्लस कर लेंगे. तो इक्वल्स आर इक्वल एडेड ऑन बोथ साइड्स गिव्स द सेम रिजल्ट. मतलब if equals are added to equals their results will be equal. ठीक है, तो यहाँ को इक्वल ऐड कर दिया हमने AC दोनों साइड में. सो AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC हो जाएगा. हेयर BC प्लस AC, ये BC प्लस AC हमारा कोइंसाइड कर रहा है AB के साथ. And it is known that things which coincide with one another are equal to one another. जो एक दूसरे के साथ coincide करती हैं वो चीजें एक दूसरे की इक्वल होती हैं. ठीक है, तो BC प्लस AC क्योंकि coincide कर रही है AB के साथ, तो ये हो जाएगा BC प्लस AC इज इक्वल टू AB. ये हमारी इक्वेशन हो गई 2. ठीक है, इट इज नोन दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमारे पास दो कंडीशंस हैं जो AB की इक्वल है. ठीक है, तो जो चीजें सेम थिंग की इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी क्या होती है? इक्वल होती हैं, क्योंकि वो AC प्लस AC भी AB की इक्वल है और BC प्लस AC भी AB की इक्वल है. तो इस समय क्या मिल जाएगा? सॉरी, AC प्लस AC BC प्लस AC की इक्वल है और BC प्लस AC AB के इक्वल है. तो दोनों ही सिचुएशन में क्या है? AC प्लस AC और AB दोनों ही BC प्लस AC की इक्वल है. तो इट मीन्स कि AC प्लस AC इज इक्वल टू AB होगा. तो it gives 2AC is equal to AB and AC is equal to half of AB. ठीक है, यूक्लिड्स के एक्सियम्स का यूज किया यहाँ पे हमने. क्वेश्चन नंबर 5. In the above question, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जैसे दिया था, ठीक है, तो पॉइंट C क्या था? मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट AB का. उसी तरह से यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि हर लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है. ठीक है, लेट देयर बी टू मिड पॉइंट्स B एंड C. यहाँ हमारे पास लाइन सेगमेंट है AD. ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास आपको टू मिड पॉइंट्स हैं, पॉइंट B एंड पॉइंट C. अगर C AD का मिड पॉइंट हो तो क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू CD.
ठीक है, तो दोनों साइड में हम AC ऐड कर लेंगे, इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा AC प्लस AC इज इक्वल टू CD प्लस AC, बिकॉज CD एंड AC कोइंसाइड्स विद AB, ठीक है, एंड इट इज नोन दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CD प्लस AC इज इक्वल टू AD, ठीक है, इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 1 है। It is also known that things which are equal to same thing are equal to one another. There from equation 1 and 2 we obtain AC plus AC is equal to AD. It implies that 2AC is equal to AD. ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऊपर 4 में हमने प्रूव किया था उसी तरह से यहाँ पे भी यहाँ तक। Similarly by taking B as the midpoint of AD, अभी हमने क्या कहा था C को midpoint लिया था, तो हमने इस तरह से प्रूव किया था कि 2AC is equal to AD है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, B को मिड पॉइंट मान लेते हैं, अगर B मिड पॉइंट हो तो इसी तरह से हमारा जाएगा 2AB इज इक्वल टू AD, ये हमारी इक्वेशन 3 है, ये हमारी इक्वेशन 4 है, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, जो चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये भी AD के इक्वल है 2AC, और 2AB भी क्या है AD के इक्वल है, दोनों सेम थिंग के इक्वल है, इट मीन्स ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो 2AC इज इक्वल टू 2AB, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू AP, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि AC इज इक्वल टू AB है यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, AC क्या है, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, इस तरह से AC इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया AB, और ये कब पॉसिबल होगा, जब C और B सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, दे C and B इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो हमारा जो एजम्पशन है कि C and B हमारे दो डिफरेंट मिड पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि देयर कैन बी ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, in the following figure if AC is equal to BD then prove that AB is equal to CD। अभी आपको मैं फिगर दी है, ठीक है, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AC इज इक्वल टू क्या है AB प्लस BC, ठीक है, इसी तरह से BD हमारा क्या है BC प्लस CD, गिवन दैट AC इज इक्वल टू BD, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD, क्योंकि AC इज इक्वल टू BD है हमारा, और AC हमारा क्या है AB प्लस BC, और BD हमारा क्या है BC प्लस CD, इस तरह से हमारा AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल, यूक्लिड के एक्सियम में अगर हम इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर्स इक्वल मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम इक्वल हैं, ठीक है। इन इक्वल्स में से हम BC माइनस कर रहे हैं, दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, तो हो जाएगा AB प्लस BC माइनस BC, इट इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस BC, ठीक है, BC माइनस BC यहाँ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा AB, यहाँ पे BC माइनस BC कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा CD, तो ये हो गया AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, यहाँ पे फिफ्थ पोस्टुलेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है फिफ्थ एक्सियम की, जो जिसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ कंसिडर किया गया है, तो क्यों किया गया ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन, एक्सियम 5 स्टेट्स दैट द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यूक्लिड का जो एक्सियम 5 है वो क्या स्टेट करता है कि जो होल है वो हमेशा अपने पार्ट से ग्रेटर होगा। दिस एक्सियम इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू इन एनी फील्ड एंड नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स के अलावा भी हर फील्ड में ये सही है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है।
लेट अस टेक टू एग्जांपल्स। आपको हम 2 एग्जांपल लेते हैं, वन इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड वन अदर देन दैट। ठीक है, एक मैथ्स के फील्ड में, एक उससे अलग। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, लेट W बी रिप्रेजेंट अ होल क्वांटिटी एंड ओनली A एंड B आर पार्ट्स ऑफ इट। अगर W होल क्वांटिटी है और A और B इसके पार्ट है, इट मींस कि W इज इक्वल टू A प्लस B। इससे हमें साफ दिख रहा है कि W क्या है, A प्लस B है, तो क्या है, A से भी बड़ा है और B से भी बड़ा है, यानी कि W विल बी ग्रेटर देन ऑल इट्स पार्ट, यानी कि A एंड B दोनों, दो ही पार्ट है A एंड B, तो उन दोनों से ही बड़ा है। ठीक है, फिर है मैथ्स के केस में तो हमने देख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लेट अस कंसीडर द होल वर्ल्ड। हम होल वर्ल्ड की बात करें, देन लेट अस कंसीडर अ कॉन्टिनेंट एशिया विच बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, इस वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से एक एशिया भी है, तो एशिया इज अ पार्ट ऑफ होल वर्ल्ड। तो एशिया क्या है, होल वर्ल्ड का एक पार्ट है। एंड इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट होल वर्ल्ड इज ग्रेटर देन द एशिया। और ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो होल वर्ल्ड है वो एशिया से बड़ा है। दैट इज वाई वी कैन से दैट होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि होल क्या है, ग्रेटर देन द पार्ट। दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इज दस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इसलिए मैथ्स में भी और मैथ्स के बाहर भी ये क्या है, ट्रू है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इसलिए इसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है। ठीक है, सो इट इज अ यूनिवर्सल